Very good morning, my dear student. I am Asim Kumar Mandal, is a mathematics teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajodha. Student, today I am taking the introduction of chapter number 11, mensuration, part 4th. What is the meaning of the part 4th? In the first part, we defined the basic concept syllabus of the mensuration. मेंसुरेशन सिलेबस में कितनी चीज़ें हैं हमने इस बात पे डिस्कशन करा था। पार्ट टू में हमने देखा स्टूडेंट square, parallelogram, rectangle, rhombus and their characteristic with the definition with the diagram. Part number 3 we study about the circle and related to the all geometrical formula or identities and definitions shapes related to circle. Now student, today we define the cube and cuboid. What is the mean of the cube and what is the mean of the cuboid? In the case of the cuboid, we will start with the simple basic concept rectangle. सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा स्टूडेंट व्हाट इज द मीन ऑफ द रेक्टेंगल shape. In the case of the rectangle, let us consider A, B, C, D is a rectangle. First one, A, B, C, D is a rectangle. Opposite sides are equal. That means AP equal to CD. And here AD will be equal of BC. Student, first one, opposite sides are equal and opposite sides are parallel to each other. Okay student, फर्स्ट वन इन द केस ऑफ द क्यूबॉइड. क्यूबॉइड को हम समझेंगे बट हम पहले समझते हैं रेक्टेंगल. और क्यों रेक्टेंगल को समझा मैं उसका भी रीजन बताऊंगा स्टूडेंट. रेक्टेंगल दैट मीन्स अ एग्जांपल ऑफ द बोर्ड. You know that very well. Opposite sides are equal and parallel to each other, and all angle will be equal of 90 degree. That means angle A equal to angle B equal to angle C, angle D, both will be equal of 90 degree. And next one, diagonals AC will be equal of BD. The shape are known as rectangle. स्टूडेंट, अब हम क्या कर रहे हैं, हम क्यूबॉइड को बना रहे हैं. तो क्यूबॉइड को बनाने के लिए हमें क्या लगेगा, रेक्टेंगल शेप लगेगा. ओके स्टूडेंट, ध्यान से देखिए. लेट अस कंसिडर अ नंबर ऑफ रेक्टेंगल शेप. हमने जैसे ही यहाँ पर बेंड करा तो हमको क्या मिल गया स्टूडेंट, क्यूबॉइड. क्योंकि क्यूब और क्यूबॉइड में एक डिफरेंस होता है, तो मैं आपको बोर्ड पे ये जितनी भी चीज़ बता रहा हूँ, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, होलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, स्फीयर, ये सभी क्या है, एग्जाम्पल ऑफ 3D. माय डियर स्टूडेंट, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द 2D एंड 3D. 2D जिसको हम टच करके फील नहीं कर सकते, एग्जाम्पल ऑफ द 2D. एंड पेन इज द एग्जाम्पल ऑफ द 3D. अगर जब हम इसको आके क्लोज करके भी टच करेंगे तो हम फील कर सकते हैं कि सर हमारे हाथों में क्या है, पेन. दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ द 3D. स्टूडेंट, नाउ क्यूबॉइड. फर्स्ट डेफिनेशन, क्यूबॉइड मेड बाय द रेक्टेंगल. ओके स्टूडेंट, ये जो होते हैं, ये जो है पॉइंट्स, इसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, कॉर्नर. फर्स्ट वन कॉर्नर एंड सेकंड वर्टाइसेस एंड सेकंड वन एज दैट मीन्स अ साइड. ओके स्टूडेंट, तो हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देयर, 8 कॉर्नर्स आर देयर. और हर एक कॉर्नर पर 3 साइड है, कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी. व्हाट इज द मीन ऑफ द कैपिटल ए. सपोज ए दैट मीन्स अ लेंथ, B that means breadth, and C that means height. Okay student, suppose A, length of cuboid, B, breadth of cuboid, C, height of cuboid. We will start with the simple formula, volume of cuboid. What is the meaning of the volume of cuboid student? ध्यान से देखना. वॉल्यूम दैट मीन्स कैपिटल V विल बी इक्वल ऑफ लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट. शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे स्टूडेंट,
तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला v इक्वल टू लेंथ, v इक्वल टू लेंथ रिप्रेजेंट बाय द a, ब्रीथ रिप्रेजेंट बाय b and height represent by the c. So finally we getting the first formula v equal to abc. Okay my dear student, first formula कैसा पूछा जाएगा आपसे, मैं आपसे पूछूंगा राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम, तो आप बोलेंगे ABC वेयर A लेंथ, B ब्रीथ एंड C दैट मीन्स अ हाइट. स्टूडेंट नाउ वी टेकिंग द second formula that means a surface area of cuboid. The surface area of cuboid will be equal to AB plus BC plus CA. Total surface area of cuboid will be equal to AB plus BC plus CA. In another form we can write 2 into length into breadth plus breadth into height plus height into length. Okay student, ABC that means the length, width, height of cuboid. Second, next student, covered surface area of cuboid. What is the basic difference between the covered surface area and total surface area? स्टूडेंट कवर्ड सरफेस एरिया, जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा अ रूम इन द फॉर्म ऑफ द क्यूबॉइड एंड द डायमेंशन विल बी इक्वल ऑफ 10 into 20 into 30, that means the length will be equal of 10, breadth will be equal of 20 and height will be equal of 30. Find the covered surface area. मतलब हम जब दीवालों को पेंट करते हैं तो जितना एरिया कवर होता है उसको हम बोलते हैं कवर्ड सरफेस एरिया. और टोटल अगर जो हम नीचे वाले और ऊपर वाले को भी कैलकुलेट करते हैं 6 वॉल, दैट मीन्स अ टोटल सरफेस एरिया, 4 वॉल दैट मीन्स अ कवर्ड सरफेस एरिया. तो कवर्ड सरफेस एरिया के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ध्यान सुनिए. 6 कब होगी, अगर जो मैं यहाँ ठीक सामने खड़ा हूँ तो फर्स्ट वॉल एंड सेकेंड वॉल. ओके स्टूडेंट, इन द फ्रंट ऑफ मी, बिहाइंड ऑफ मी, लेफ्ट साइड थर्ड, राइट साइड फोर्थ, डाउन साइड फिफ्थ, अपर साइड 6. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमको ध्यान से देखिए, ठीक है. अगर जो हम इसको समझने की कोशिश करें, हाउ मेनी वॉल्स 6, तो AB प्लस AB, BC प्लस BC, CA प्लस CA. स्टूडेंट व्हाट इज द मीन ऑफ द AB? अगर जो हम सिर्फ AB की बात करें, AB दैट मीन्स A इंटू B दैट मीन्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट मीन्स एरिया ऑफ वन वॉल. ठीक है, टोटल सरफेस एरिया तो कितनी वॉल होगी, 6 वॉल होगी, तो मुझे 6 बार लिखना पड़ेगा. ठीक है, ये सामने वाली है तो ये पीछे वाली है, दोनों एक जैसी होगी. लेफ्ट तो राइट दोनों एक जैसी होगी, डाउन तो अपर दोनों एक जैसी होगी. स्टूडेंट 6, तो AB plus AB will be equal of 2AB, 2BC and 2CA, 2 outside of the bracket. So final solution will be equal of AB plus BA plus CA in the case of the total surface area. But when we told about the particular covered surface area, तो मुझे 2 वॉल को हटाना पड़ेगा. ओके, तो मेरा फॉर्मूला कितना हो जाएगा, covered surface area that means 2 times AB plus BC. First formula related to volume that means हमारे टैंक में कितना पानी आ रहा है, हाउ मच वाटर इन द टैंक, दैट मीन्स वॉल्यूम. और हम पेंट करेंगे टैंक को, कवर करेंगे तो कवर्ड सरफेस एरिया. स्टूडेंट कवर्ड सरफेस एरिया में भी हमने देखा है एक फॉर्मूला 4 वॉल के लिए है और दूसरा फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया के लिए. अब स्टूडेंट नेक्स्ट देखिए, एरिया फॉर द ओपन टैंक, एरिया फॉर ओपन टैंक. अगर जो हम ओपन टैंक की बात करें तो ओपन टैंक मतलब क्या, सिर्फ इस वाले फेस को आप हटा दीजिए. हाउ मेनी वॉल्स, 1 2 3 4 एंड 5. ठीक है, सामने पीछे नीचे ऊपर वाला छोड़ दीजिए, लेफ्ट एंड राइट, तो टोटल कितना हो जाएगा 5. दैट मीन्स AB प्लस AP. ठीक है, फ्रंट एंड बिहाइंड, लेफ्ट एंड राइट, और अगर जो ऊपर वाले को छोड़ दे तो सिर्फ नीचे वाला कितना होगा, CA. दैट मीन्स 2AB प्लस 2BC प्लस 1 टाइम CA, टेकिंग 2 outside of the bracket, so we getting 2AB plus BC
एंड आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट CA, तो अपॉइंटिंग का फॉर्मूला क्या बनेगा 2AB plus BC outside of the bracket CA. Okay student, first formula related to volume, second surface area, third covered surface area, fourth one area of open tank. Now we introduce the last formula, length of diagonal. Okay student, length of diagonal. तो सर आपसे कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। लेंथ ऑफ डायगोनल का क्वेश्चन किस फॉर्म में आएगा, आपको एक मेजरमेंट दिया रहेगा, मैं क्वेश्चन लूंगा एग्जांपल में और आपसे पूछा जाएगा फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट बम्बू। इस कमरे में सबसे बड़ा बांस किधर रख सकते हैं सर हम, डायगोनल साइड में। तो लेंथ ऑफ डायगोनल विल बी इक्वल ऑफ अंडर द रूट A² प्लस B² प्लस C²। ओके स्टूडेंट, व्हाट इज द मीन ऑफ द ABC? A दैट मीन्स अ लेंथ, B दैट मीन्स अ ब्रेड्थ एंड C दैट मीन्स अ हाइट। नाउ टाइम टू डिफाइन द क्यूब। ओके स्टूडेंट, जब भी आप क्यूबॉइड को पढ़ेंगे तो साथ में क्यूब को पढ़ना, ठीक है। व्हाट इज द मीन ऑफ द क्यूब? क्यूब इज द शेप ऑफ द बॉक्स, बिल्कुल वैसा ही बॉक्स है जैसा आपने क्यूबॉइड में देखा, बट इन द केस ऑफ द क्यूबॉइड वी यूज्ड अ फेस इन द फॉर्म ऑफ द रेक्टेंगल। जब हम वॉल की बात करें तो जो वॉल है वो किस फॉर्म में है, रेक्टेंगल के फॉर्म में है। बट अब जो हम वॉल लेंगे वो किस फॉर्म में होना चाहिए स्टूडेंट, स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए। व्हाट इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ द स्क्वायर? फर्स्ट वन, ऑल साइड्स आर इक्वल, रिपीट, all sides are equal, comma, all diagonals are equal, comma, all angles will be equal of 90 degree. First one student, in the case of the rectangle, opposite sides are equal and parallel. Here all sides are equal, comma, opposite sides are parallel. सभी साइड आपस में इक्वल है और आमने सामने वाली एक दूसरे के पैरेलल है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वन, डायगोनल्स आर इक्वल, हियर आल्सो डायगोनल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स विल बी इक्वल ऑफ 90 डिग्री। मतलब बेसिक डिफरेंस क्या है यहाँ पर हमने बोला, इन द केस ऑफ द रेक्टेंगल ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, और यहाँ पर बोला है ऑल साइड्स आर इक्वल, कॉमा, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। सो जब भी आप कोई क्यूबॉइड बनाएंगे तो आपको कैसा लेना है, वॉल इन द फॉर्म ऑफ द रेक्टेंगल, बट इन द केस ऑफ द क्यूब वॉल इन द फॉर्म ऑफ द स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर कितनी वॉल ले ली स्टूडेंट, 6। ओके, किसी भी रूम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कितनी वॉल चाहिए, 6। स्टूडेंट, कितने कोने हैं, हाउ मेनी वर्टाइसेस आर देयर, 8 वर्टाइसेस आर देयर। और किसी भी कोने को आप पकड़ लीजिए, हर एक कोने पर 3 चीजें होगी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। कैपिटल ए दैट मीन्स अ हाइट, कैपिटल बी दैट मीन्स अ विड्थ एंड कैपिटल सी दैट मीन्स अ लेंथ। बट सर अभी हाल आपने बोला तीनों आपस में इक्वल है, तो मैं ए बी सी तीनों को ए के फॉर्म में ही बोलूंगा। ओके स्टूडेंट, यहाँ से हमारा मैथमेटिक्स स्टार्ट हो रहा है। अभी हाल मैंने बोला इन द केस ऑफ द क्यूबॉइड ए बी सी कभी भी इक्वल नहीं होगा। मैं यहाँ पर नॉट इक्वल का साइन नहीं लगा सकता हूँ, बिकॉज 2 साइड इक्वल हो सकती है बट तीसरी इक्वल नहीं होगी। मतलब इनडायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, और यहाँ पर बोलूंगा ऑल साइड्स आर इक्वल। इन द सिंपल लैंग्वेज ए विल बी इक्वल ऑफ बी विल बी इक्वल ऑफ सी। स्टूडेंट, फर्स्ट फॉर्मूला देखिए, बी विल बी इक्वल ऑफ ए बी सी इन द केस ऑफ क्यूबॉइड, बट इन द केस ऑफ द क्यूब बोथ साइड्स आर इक्वल। तो हम सभी को क्या बोल रहे हैं, या तो सभी को ए बोलिए, या तो बी बोलिए, या तो सी बोलिए, बट लेट अस कंसीडर द साइड विल बी इक्वल ऑफ ए। तो यहाँ पर हम ए इंटू ए, दैट मीन्स द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड विल बी इक्वल ऑफ ए क्यूब। अगर जो आपको क्यूबॉइड याद है तो आप क्यूब के फॉर्मूले बना सकते हो। नेक्स्ट वन, सेकेंड फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया विल बी इक्वल ऑफ एस 2 इनसाइड ऑफ ब्रैकेट ए बी। सभी को ए लिखिए तो ए डॉट ए, अगेन ए डॉट ए एंड अगेन ए डॉट ए। ओके स्टूडेंट, ए इंटू ए विल बी इक्वल ऑफ ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, 1 time, 2 time, 3 times. How many times? 3 time a square, and 3 into 2 will be equal of 6a square.
सरफेस एरिया ऑफ क्यूब विल बी इक्वल ऑफ 6a²। देखिए यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, 6। ये 6 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ वॉल विल बी इक्वल ऑफ 6। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट फॉर्मूला, कवर्ड सरफेस एरिया विल बी इक्वल ऑफ 2a.a plus again a.a that means a square, and a square will be equal of 2 times a square, and 2 into 2 will be equal of 4a square। ठीक है, मुझे क्या मिला स्टूडेंट, 4। दैट मीन्स द नंबर ऑफ वॉल्स विल बी इक्वल ऑफ 4। नाउ ओपन टैंक की अगर जो हम बात करेंगे, ओपन टैंक इधर देख लीजिए। ठीक है, सरफेस एरिया विल बी इक्वल ऑफ 2 inside of bracket a into a, that means a square, a into a, that means again a square, outside of the bracket a square। student, 2 into 2 times a square plus a square, that means s will be equal of 2 to the 4, and 4 plus 1 will be equal of 5। 5 represent the number of walls in the case of the open tank, how many walls, 5। In the case of the covered surface area, how many walls, 4। But in the case of the total surface area, how many walls, 6। Okay student, number of walls will be equal of 6। So student, number of walls in the covered surface area will be equal of 4। In the case of the open tank will be equal of 5। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको फॉर्मूले के, ठीक है, बाय यूज ऑफ द फॉर्मूला वी डिफाइन द नंबर ऑफ वॉल्स विल बी इक्वल ऑफ 4, विल बी इक्वल ऑफ 5, विल बी इक्वल ऑफ 6। एंड व्हाट इज द मीन ऑफ द ए स्क्वायर, that means a into a, length into width, that means the area of single wall। student, the last formula, length of the diagonal, ध्यान से देखेंगे, the length of diagonal in the cuboid will be equal of a square plus b square plus c square, but here we defined a equal to b equal to c। ये तीनों आपस में इक्वल है। सपोज b इक्वल टू a एंड b इक्वल टू c, मतलब मैं रिप्लेस कर रहा हूँ a से 3 times a square outside of the bracket, so we getting a root 3। okay student, the length of diagonal in cube will be equal of a root 3। next and last one student, unit। इन द केस ऑफ द यूनिट, जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम, तो आप आंसर लिखेंगे क्यूब सेंटीमीटर। इफ क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ सेंटीमीटर, तो क्यूब सेंटीमीटर, क्वेश्चन मीटर में होगा तो क्यूब मीटर, ओके, किलोमीटर में है तो क्यूब किलोमीटर, एंड एरिया ऑलवेज रिटन इन द फॉर्म ऑफ द स्क्वायर सेंटीमीटर, एंड लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ that means a centimeter। here power will be equal of 1, power will be equal of 2, and power will be equal of 3। what is the mean of the 1 2 3, that means a 3D। okay student, volume is the example of the 3-dimension geometry, surface area is the example of 2-dimension geometry, and length, breadth, height, depth, both are the example of 1-dimension geometry। okay student, a simple basic explanation and formula related to mensuration। पहले ही बोल रहा हूँ स्टूडेंट, mensuration काफी बड़ा चैप्टर है, मैं इंट्रोडक्शन ले रहा हूँ, इंट्रोडक्शन पार्ट 4। पिछले वीडियो में हमने लिया था फॉर्मूला रिलेटेड टू सर्कल, नाउ वी टेक फॉर्मूला रिलेटेड टू क्यूब एंड क्यूबॉइड, देन आफ्टर वी विल स्टडी अबाउट द होलो एंड सॉलिड सिलेंडर, देन आफ्टर sphere and semi sphere। okay student, thank you so much to watching this YouTube channel of Santipani Higher Secondary School Rajada। student, please like my video, share between the friends, subscribe our channel, and please study all subject from our channel। thank you so much।